بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ساتھیو. I am Mrs. انیلا عمران and you are watching UV Educational Center. آج ہمارا ہیڈا کا ٹیکسٹ ہوگا اور ہیڈا کا ٹیکسٹ ہم نے ایکٹ 2 کا سٹارٹ لیا تھا اور ایکٹ 2 کے سٹارٹ کے بعد ہم نے اسے وہاں پر لیو کیا تھا. وہاں پر ہم اسے لیفٹ کر چکے تھے جہاں پر ٹیس مین کی انٹری ہوئی ہے. ہیڈا اور جج بریک آپس میں گفت و تشنید کر رہے تھے اور جج بریک اپنی دلی خواہشات کا اظہار کر رہا تھا جس سے ہیڈا مسلسل انکار میں تھی اور اوپر سے آگے ٹیس مین کے آتے ہی جج بریک کا ٹرائی اینگل کمپلیٹ ہونے کا دعویٰ کہ چلیں جی ٹرائی اینگل کمپلیٹ ہو گیا ہے میاں بیوی اور وہ. اور جج بریک نے اسے بتایا اپنے کریکٹر کے بارے میں کہ وہ ایک ٹرسٹڈ فرینڈ ہے. وہ میرج کے سبجیکٹ کو بہت اچھے طریقے سے ڈیل کرتا ہے اور اس سبجیکٹ پہ اسے بڑا عبور حاصل ہے اور بہت سے لوگوں کے گھروں میں اس نے بہت سی ریلیشنز بنا رکھے ہیں اور سب اسے ایک ٹرسٹڈ فرینڈ کہتے ہیں. یہ ہم نے کوٹیشن یاد رکھنی ہے کہ یہ ایک ٹرسٹڈ فرینڈ ہے. اور ہیڈا نے اس کے آنے پر کہا کہ زندگی کی ٹرین چل رہی ہے. ٹیس مین اب آیا ہے. گوز اپ ٹو دا ٹیبل بسائڈ دا کارنر سیٹ میں جو ایک صوفہ پڑا ہوا ہے وہاں پر جاتا ہے میز کے پاس اور کہتا ہے ہائے تھک گیا. what a load for a warm day. کتنا گرم دن تھا. all these books اور میں نے اتنی زیادہ کتابیں اٹھائی ہوئی تھی. lays them on the table انہیں ٹیبل پر رکھ دیتا ہے. I am positively perspiring. اب ہیڈا کو اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہا اور آپس میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہے کہ میں تقریباً پسینے سے شرابور ہو رہا ہوں. ہیڈا کو ہلو کر رہا ہے. are you there already my dear judge. اب اس کی نگاہ جج پہ پڑی اور اسے کہہ رہا ہے تم پہلے ہی یہاں پر آ گئے ہو. برتھا didn't tell me. برتھا نے تو مجھے نہیں بتایا کہ جناب آپ آئے ہوئے ہیں. بریک رائزنگ فٹافٹ کھڑا ہو جاتا ہے. I came through the garden. میں گارڈن کے راستے سے آیا ہوں. اب ہیڈا کو چونکہ بڑا عبور حاصل ہے کہ موضوع ٹاپک چینج کرنے کا فٹافٹ بولی ہے. What books have you got there. اس کا دھیان چینج کرنے کے لیے فوراً کہ وہ جج بریک کے زیادہ انویسٹیگیشن مت کرے. یدی یہ کتابیں تم کون سی لے کے آ گئے ہو. ٹیس مین اسٹینڈز لوکنگ them through. ان دونوں کو بڑے غور سے دیکھتا ہے. some new books on my special subjects. کچھ میرے خاص موضوع کے لیے کچھ نئی کتابیں لے کے آیا ہوں. quite indispensable to me. اب چونکہ یہ دوسری ادھر جاتا ہے دوسری لائبریریز میں جاتا ہے مختلف جگہوں پر جاتا ہے اور وہاں سے جا کے یہ کتابیں اکٹھی کرتا ہے. اب یہ دیکھتا ہے کہ یہ میرے ہی لیے انڈسپنسیبل ہوئی ہیں کہ شاید لگتا ہے میرے لیے ہی یہ شائع ہوئی ہیں اور میرے اسپیشل موضوع پر بنی ہوئی ہیں. یور اسپیشل سبجیکٹ. اب اس نے بولا کہ کیونکہ یہ اس سے بات کری تھی نا بریک سے کہ وہ بڑے خاص موضوع پہ کتاب لکھ رہا ہے اور اس کے لیے وہ ادھر ادھر سے ریسرچ کرتا ہے تو کتابیں اکٹھی کرتا ہے. اب بریک نے بھی کہا یس بکس آن ہز اسپیشل سبجیکٹس مسز ٹیس مین. اب آتے ہی نام چینج ہو گیا. مسز ہیڈا گیبلر سے آ گئی مسز ٹیس مین. اس کو کہہ رہا ہے کہ جی ہاں جی اس کا اسپیشل موضوع. ہیڈا ڈو یو نیڈ اسٹل مور بکس آن یور اسپیشل سبجیکٹس. تھی ابھی بھی تمہیں اپنے اسپیشل سبجیکٹ کے لیے اتنی کتابیں چاہیے. ٹیس مین یس مائی ڈیئر ہیڈا. ہاں مجھے چاہیے. one can never have too many of them. انسان کے پاس جتنی بھی آ جائیں گی نا پھر بھی وہ کم ہی ہوتی ہیں. اس کو زیادہ سے زیادہ کلیکشن چاہیے ہوتی ہے. of course one must keep up with all that's written and published. لہٰذا مجھے یہ سارا کچھ رکھنا چاہیے اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ میں نے یہ ساری چیزوں کو اپنے پاس رکھنا ہے جو کہ پبلشڈ ہوئی ہیں اور لکھی گئی ہیں. یہ ایک پروفیشنل پرسن کی تھاٹ ہے کہ بھئی ہر ایک پہ نظر رکھنی کہ کون کیا کر رہا ہے کس نے کتنا لکھ دیا ہے اور اسی لیے تو یہ لو برڈ کی بک بھی لے کر آیا ہے. پروفیشنل ٹائپ کی سوچ رکھتا ہے ہیڈا. یس آئی سپوز ون مسٹ. کہتی ہاں مجھے لگتا ہے ایسا ہی ہونا چاہیے. ٹیس مین سرچنگ امانگ ہز بکس. کتابوں کے اندر تلاش کرتا ہے. اینڈ لک ہیئر اور دیکھتا ہے I have got hold of Elliot Lovebook's new book too. میں ایلیٹ لوبرگ کی نئی کتاب بھی لے کر آیا ہوں. ڈھونڈتا ہوا کتابوں میں سے نکالتا ہے. offering it to her. اس کو پیش کرتا ہے ہیڈا کو. اس کی طرف کتاب کرتا ہے. perhaps you would like to glance through it. لہٰذا شاید تم اسے دیکھنا پسند کرو گی ہیڈا. اور ہیڈا ہاتھ آگے بڑھاتے بڑھاتے روک لیتی ہے. کہتی نو تھینکس شکریہ. اور rather afterwards perhaps. شاید میں بعد میں دیکھوں گی اسے ابھی نہیں دیکھنا چاہتی. ٹیس مین I looked into it a little on the way home. کہتا جب میں گھر آ رہا تھا راستے میں میں نے دیکھا اس کے اندر یعنی 2-4 صفحے ٹٹول رہا تھا اور ساتھ ساتھ چیک کر رہا تھا کہ آخر جناب نے اس میں لکھا کیا ہوا ہے. بریک well what do you think of it as a specialist.
स्पेशलिस्ट पे ये अभी बात कर रहे थे कि वो बड़ा माहिर है अपने मौजू का, तो कहता है बताओ ना ज़रा तुम्हारा ख्याल क्या है, उसने क्या कैसी किताब लिखी है, ज़ाहिर है तुम भी तो एक स्पेशलिस्ट की हो। अब जो टेस्टमैन के पॉजिटिव उसके बारे में अभी बहुत पॉजिटिव उसके बारे में व्यूज़ है। कहता है आई थिंक इट शोज़ क्वाइट रिमार्केबल साउंडनेस ऑफ द जजमेंट। कहते हैं बड़े ज़बरदस्त और बड़ी मजबूत साउंड वाली, साउंडनेस यानी मजबूत उस पर बातें हो सकती हैं, उस पर कलामात कहे जा सकते हैं। अगर मेरी राय हो तो ही नेवर रोट लाइक दैट बिफोर, वो तो पहले ऐसे लिखता ही नहीं था कभी। पुटिंग द बुक्स टुगेदर, किताबों को इकट्ठा करता है। नाउ आई शैल टेक ऑल दिस इन टू माई स्टडी, अब मैं इन्हें ले जाता हूँ अपने कमरे में जहाँ इसने किताबें रखी हुई हैं, बिकॉज यहाँ रखेगा तो हैडा को ऑब्जेक्शन होएगा ना, ड्राइंग रूम की शोशा ख़राब हो रही है। लॉगिंग टू कट द लीव्स, लॉगिंग टू कट द लीव्स, इसने एक और इडियम्स यूज़ किया है कि मैं एक एक वर्क जो है ना पढ़ूँगा, इसका जाके इसके सब स्टडी करूँगा। एंड देन आई मस्ट चेंज माई क्लॉथ्स, और फिर मुझे अपने कपड़े भी तो बदलने हैं। टू ब्रैग, ब्रैग से पूछता है आई सपोज वी डिडंट स्टार्ट जस्ट येट, ये पूछ रहा है कि क्या पार्टी वगैरह कुछ जल्दी तो नहीं शुरू होने वाली। अब ब्रैग साहब तो पहले ही जाते हैं कि ये जाएं और मेरी हैडा से मज़ीद गुफ्तगू हो। कहता ओ डियर नो नो, नहीं अभी नहीं हो रही, देयर इज़ नॉट द स्लाइटेस्ट हरी, कोई भी जल्दी नहीं है हमें। टेस्टमैन वेल देन, ठीक हो गया, बहुत अच्छा हुआ। आई विल टेक माई टाइम, तो मैं फिर अपना टाइम लूँगा, नहाऊँ धोऊँगा, फिर कपड़े चेंज करूँगा, यानी उसको टाइम मिल गया। अभी था भी तो ये दोपहर को ही तो आ गया, आफ्टरनून को आ गया, पार्टी तो इन्होंने कहीं जाके रात गए शुरू करनी है। इज़ गोइंग विद हिज बुक्स, बुक्स कर लेता है, बट स्टॉप्स इन द डोर वे एंड टर्न्स, रुक जाता है दरवाजे के पास और मुड़ता है। बाय हैडा, अब हैडा से पूछना चाहता है कुछ, क्योंकि उसको कुछ याद आ गया है, जाते जाते मुड़ा है और हैडा से कह रहा है आंट जूलिया इज़ नॉट कमिंग दिस इवनिंग, क्योंकि उसने कहा था ना कि आंट जूलिया को खाने पे बुला लेना, उसने कहा भाई वो नहीं आ रही आज। हैडा नॉट कमिंग, एज इट डैट अफेयर ऑफ द बॉनेट डैट कीप्स हर अवे। कहती बॉनेट क्या, वो हैट, जो उसने हैट पे आते ही उसे ताना मारा था, कहती वो हैट की वजह से नहीं आ रही है। टेस्टमैन ओ नॉट एट ऑल, नहीं नहीं, हाउ कुड यू थिंक सच अ थिंग्स ऑफ आंट जूलिया, कैसी सोच सकते हो तुम, आंट जूलिया ऐसी छोटी मोटी चीज़ों पे गौर करेगी, जस्ट फैंसी सोचो तो। द फैक्ट इज़ आंट रीना इज़ वेरी इल, हकीकत में आंट रीना बहुत बीमार है, और आंट रीना एक गैबी किरदार है जिसे हम एंड तक नहीं देख पाएंगे। हैडा शी ऑलवेज, वो तो हमेशा से बीमार रहती है। अब आपस में जिसे कह रहे हैं ना जली कटी फेंक रही है। टेस्टमैन यस बट टुडे, लेकिन आज शी इज़ मच वर्स देन यूजुअल, पुअर डियर, आज वो बेचारी बहुत बीमार हुई है, आज उसकी हालत जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा ख़राब है। हैडा ओह देन इट्स ओनली नेचुरल that her sisters should remains with her, और तो ये तो कुदरती बात है, कुदरती बात हुई है, खुद वो चार पैसे लगी पड़ी है, पैरालाइज है, बीमार है, तो फिर सिस्टर ने तो उसके पास ही रहना है। आई मस्ट बियर माई डिसअपॉइंटमेंट, तो मैं बर्दाश्त कर लूँगी अपनी मायूसी को, कि इनकार हो गया उसकी तरफ से, वो आज आ नहीं रही। टेस्टमैन एंड यू कांट इमेजिन डियर, तुम नहीं सोच सकती हाउ डिलाइटेड आंट जूलिया सीम्स टू बी, और वो कितनी खुश है, बिकॉज यू हैड कम होम, तुम घर आ गए, लुकिंग सो फ्लरिशिंग, और तुम बहुत ज़्यादा सेहतमंद लग रही हो। यानी आप आंट जूलिया को खुशी है कि भाई जनाब ये हैडा प्रेग्नेंट हो गई है, तो बीइंग प्रेग्नेंट होने के नाते वो बड़ी हैप्पी है। हैडा हाफ अलाउड राइजिंग, ऊंची से आवाज़ में बोलते ओ दीज एवर लास्टिंग आंट्स। अब चूँकि टेस्टमैन थोड़ा उधर चला गया है, तो अब इसने बोला कि ये आंटियाँ जो कभी भी ना जान छोड़ेंगी हमारी। टेस्टमैन व्हाट, क्या कहा। हैडा गोइंग टू ग्लास डोर, चली जाती है वो फ्रेंच डोर के पास, जब ये परेशान होती है तो उधर जाती है, आज़ादी मांगती है, तो ये उस चीज़ की अलामत है। कहती नथिंग, कुछ नहीं कहा मैंने। टेस्टमैन ओ ऑल राइट, ठीक है। ही गोज थ्रू द इनर रूम आउट टू द राइट, सीधे हाथ की तरफ से वो पिछले कमरे की तरफ चला जाता है। ब्रेक अब आया है, ब्रेक को बड़ी आदत है जनाब बातें उगलवाने की। हैडा अगर दूसरों से बातें उगलवाती है तो जज ब्रेक इससे बातें उगलवा लेता है, और ये उसमें क्वालिटी, अगर हैडा में क्वालिटी है कभी दूसरों की किस्मत पे काबू पाना है, तो जज ब्रेक इस पे काबू पा लेता है। व्हाट बॉनेट वर यू टॉकिंग अबाउट, क्या बातें कर रही थी ये हैट के बारे में तुम। हैडा ओह इट वॉज अ लिटिल एपिसोड विथ मिस टेस्टमैन दिस मॉर्निंग, मिस टेस्टमैन के साथ, आंटी जोजो के साथ आज सुबह एक मामला हो गया। शी हैड लेड डाउन हर बॉनेट ऑन द चेयर, उसने अपना हैट
کرسی پر چھوڑ دیا دیر یہاں پر. looks at him and smiles, اس کی طرف دیکھتی اور مسکراتی. and I pretended to think it was the servants, اور میں نے بہانہ لگایا کہ یہ نوکرانی کا ہے یہاں پر کیا کر رہا ہے اور میں نوکرانی کو نوکری سے نکال دوں گی. یہاں پر اس نے پریٹینڈ کیا ہے تو ہمیں یہ پتہ لگ گیا ہے کہ ہیڈا نے آتے ہی لڑائی ڈال دی تھی, آتے ہی اس نے آنٹ جولیانا پر اٹیک کیا. بریک شیکنگ ہز ہیڈ, اپنا سر ہلاتے ہوئے. او مائی ڈیئر مسز ہیڈا. اب جج بریک نے نام کیا لیا؟ مسز ہیڈا, کیونکہ ٹیسمن یہاں سے جا چکا ہے. فوراً اپنی اوقات پر آ گیا. ہاؤ could you do such things, کیسے کر سکتی تم ایسی چیزیں؟ to the excellent old lady too, کیونکہ وہ اولڈ لیڈی ہے, اتنی اچھی عورت ہے اور تم نے اس کے ساتھ کیسے یہ کر دیا. اب ہیڈا کا یہ والا ڈائلاگ بہت بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس سے ہمیں اس کے کریکٹر کا پتہ چلتا ہے. نروسلی کراسنگ دا روم, کمرے کو ادھر ادھر پریشانی میں بے چینی میں چلتی ہے. ویل یو سی, تم جانتے ہو, دیز امپلسز کم اوور می آل آف اس ڈن, ایسی چیزیں مجھ پر اچانک ہی آ جاتی ہیں, ایسی طبیعت میری اچانک ہو جاتی ہے. اینڈ آئی کین ناٹ ریزسٹ دیم, اور میں انہیں روک نہیں سکتی. تھرو ہر سیلف ڈاؤن ان دا ایزی چیئر بائی دا اسٹوو, حسد چولہے کے پاس بیٹھ گئی اور پھر ایزی چیئر پہ بیٹھی ہے. حکومت ہاتھ میں ہے اور حسد کی وجہ سے چولہے کے پاس ہے. اب وہ کہتی ہے میں ایسی چیزوں کو نہیں روک سکتی. او آئی ڈونٹ نو ہاؤ ٹو ایکسپلین اٹ, میں بتا نہیں سکتی کہ مجھ پہ یہ سب کچھ کیسے طاری ہو جاتا ہے. یہ اس کا رویہ ہے, یہ اس کا کردار ہے, اس کی بے چینی ہے, اس کی ریسٹ لیسنس ہے, اس کو وہ ایکسپلین کر رہی ہے. اور جج میں اتنی پاور ہے, وہ پاور رکھتا ہے ٹو گیٹ انفارمیشنز فرام ہیڈا, کہ ہیڈا سے وہ ساری معلومات نکلوا لیتا ہے. اور ہیڈا کی یہی غلطی ہوتی ہے, اس کو سارا کچھ بتا دیتی ہے اور پھر اسی کے ہاتھوں دھوکہ کھاتی ہے. بریک بیہائنڈ دا ایزی چیئر, پیچھے چلا جاتا ہے اسی کرسی کے. یو آر ناٹ ریئلی ہیپی, اس کا مطلب ہے تو تم خوش ہی نہیں ہو. دیٹ از ایٹ دا باٹم آف اٹ, یہی ان ساری باتوں کی جڑ ہے. میں یہاں پر یہ اندازہ لگا سکتا ہوں کہ اس قسم کی تمہاری طبیعت ہو جاتی ہے کیونکہ تم اصل میں خوش نہیں ہو. یہی اس کا جواب ہے. ہیڈا لوکنگ اسٹریٹ بیفور ہر, اس کو غور سے دیکھتی رہتی ہے. آئی نو آف نو ریزن وائی آئی شوڈ بی ہیپی, میں جانتی ہوں یہاں پر کوئی ایسی وجہ ہی نہیں ہے جس وجہ سے میں خوش ہوں. میں کیوں خوش رہوں؟ پرہیپس یو کین گیو می ون, ایک تو وجہ بتاؤ مجھے کہ میں یہاں پر خوش رہوں. کہتا ہے ویل amongst other things, دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ because you have got exactly the home you had set your heart on. دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ یعنی جج بتانا چاہ رہا ہے کہ ٹیسمن پہ بھی تمہارا دل آ گیا اور اس گھر پہ بھی تمہارا دل آ گیا, اب تو تمہیں یہ گھر بھی تو مل گیا, تو تم کیسے خوش نہیں ہو. looks up at him, اس کی طرف دیکھتی ہے, and laughs, اور ہنستی ہے. do you too believe in that legend, اوہو. اب کہتی ہے کہ کیا تم بھی میری اس کہانی پر یقین رکھتے ہو, میرے اس لیجنڈ پر, میری اس سٹوری پر تمہیں بھی یقین آ گیا. is there nothing in it then, کہتا ہے کیا یہ کہانی سچی نہیں ہے کہ تمہیں گھر پسند تھا. ہیڈا او یس there is something in it, یہاں پر بھی کچھ ہے. جج او ویل, تو پھر بتائیں, کیونکہ جج اس سے اگلوا رہا ہے. ہیڈا there is this in it, یہاں پر یہ ہے that I made use of Desmond to see me home from evening parties last summer. پچھلی سردیوں کی بات ہے کہ ہم دعوتوں میں ایک دوسرے کو ملتے تھے, یعنی دعوتیں وہ ملتے تھے, تو جب دعوتوں ختم ہو جاتی تھی تو واپسی پہ چھوڑنے آتا تھا ٹیسمین سے, اور پھر اس دوران یہ باتیں کا موضوع ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس نے یہ موضوع ڈھونڈا. اب بریک بولا ہائے آئی انفارچونیٹلی ہیڈ ٹو گو کوائٹ اے ڈفرنٹ وے, کتنی بدقسمتی ہے میری. اب فلرٹ کر رہا ہے کہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ میرا گھر اس ڈائریکشن میں نہیں پڑتا تھا, یہاں پہ تم لوگ پارٹی وغیرہ اٹینڈ کرنے جاتے تھے. Hedda, that's true, یہ سچ ہے. I know you were going a different way last summer, میں جانتی ہوں کہ تم پچھلے سمر پہ ایک مختلف ڈائریکشن میں تھے, تمہاری سمت کچھ اور تھی. یعنی یہ بھی اس کے ایڈمائرر میں شامل تھا, لو برگ بھی اس کے ایڈمائرر میں شامل تھا, لیکن ٹیسمین نے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے جب اس کا رشتہ مانگ لیا تو پھر ہیڈا کو وہ چیز پسند آ گئی, تو اس نے ادھر خامی بھر لی. ہنستا ہے بریک لافنگ. او فی مسز ہیڈا, ویل دین یو اینڈ دا ٹیسمین, اوہو مسز ہیڈا یو آر ویری ناٹی. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ اور مسز ٹیسمین, آگے پوچھنا چاہ رہا ہے. ہیڈا نے بات کاٹی. ویل وی ہیپن ٹو پاس ہیئر ون ایوننگ, ایک رات ایک شام ہم یہاں سے گزرے. ٹیسمین پور فالو, اوہو بیچارہ ٹیسمین واز رائٹنگ ان ایگنی آف ہیونگ ٹو فائنڈ کنورسیشن, ڈھونڈ رہا تھا, وہ تلاش کر رہا تھا, کچھ کہنے کو کوئی بات نہیں تھی اور وہ کچھ
गुफ्तो तशनीद का मौजू ढूंढ रहा था. सो आई टुक पिटी ऑन द लर्न्ड मैन. लिहाजा मुझे इस पढ़े लिखे इंसान पर, इस आलम फाजिल पर तरस आ गया और मैंने मौजू बहस शुरू कर दिया. ब्रेक स्माइल्स डाउटफुली. यू टुक पिटी. तुम्हें तरस आ गया, यानी उसे बताया हैडा तरस नहीं खाती है. हैडा यस आई रियली डिड. हाँ मुझे तरस आ गया था. एंड सो टू हेल्प हिम आउट ऑफ हिज टॉर्मेंट. और लिहाजा उसे इसकी मुसीबत से बाहर निकालने के लिए, जिस मुसीबत में वो था, कुछ बात नहीं कर पा रहा था. आई हैपन टू से, तो मैंने कहा इन प्योर थॉटलेसनेस, तो मैं नहीं बगैर सोचे समझे कह दिया, डैट आई शुड लाइक टू लिव इन दिस विला, कि मैं ऐसे विला में रहना पसंद करूँगी या चाहूँगी कि मैं ऐसे विला में रहूँ. ब्रेक नो मोर देन डैट. इससे ज़्यादा कुछ नहीं. नॉट डैट इवनिंग. बस उसी रात की ये बात है, कुछ नहीं. ब्रेक बट आफ्टरवर्ड, लेकिन बाद में. हैडा यस माई थॉटलेसनेस हैड कॉन्सिक्वेंसेस. मेरी बिला वजह कही गई बातों के नताइज निकले. माई डियर जज, अनफॉर्चुनेटली, तो बदकिस्मती से, डैट टू ऑफन हैपन्स, जैसा बहुत ज़्यादा ऐसा होता है. मिसिस हैडा कहता है बहुत ज़्यादा ऐसा होता है, लिहाजा तुमने तो बग़ैर किसी सोचे समझे ये सारी बात कह दी. लेकिन इस सारी बात के जो नताइज निकले वो कुछ ज़्यादा ही सीरियस नताइज थे, क्योंकि कर्ज़ा लेना पड़ा टेस्टमैन को जज ब्रेक से, और जज ब्रेक ने बड़ी हिम्मत से इस घर के लिए भाग दौड़ की. हैडा थैंक्स, शुक्रिया अगर तुमने इतना भाग दौड़ की थी. So you see, it was this enthusiasm for secretary Fox Villa. कहती है हाँ तुमने बड़े जोश खरोश से इस फॉक्स विला के सेक्रेटरी के लिए काम किया. That first constituted a bond of sympathy between George Tessman and me, जो मेरे और जॉर्ज टेस्मैन के दरमियान एक मुआहदा था. हम लोगों ने शादी से पहले सोच लिया था कि घर लेना है, घर कैसे बनाना है, और प्राइम मिनिस्टर का ये घर लेना है, और इसमें तो जज ब्रेक ने भी इनकी मदद की है. फ्रॉम दैट कम आवर इंगेजमेंट एंड आवर मैरिज. लिहाजा हमारी मंगनी हो गई, फिर शादी हो गई, एंड आवर वेडिंग जर्नी, फिर हम शादी के सफ़र में निकले, हनीमून पे निकले, एंड ऑल ऑफ द रेस्ट ऑफ इट. वेल ये सब कुछ हो गया. माय डियर जज, एज यू मेक योर बेड सो यू मस्ट लाई. आई कुड ऑलमोस्ट से, अगर मैंने शादी कर ली है तो अब मुझे अपना गुजारा ऐसे ही करना होगा. ले माय बेड, इसका भी इडियम ही निकलता है कि शादी कर ली है. ब्रेक दिस इज़ एक्सक्यूज इट. ये तो बड़ी ही साफ बात हो गई है, बहुत हैरान कुन बात कह दी आपने. एंड यू रियली केयर्ड नॉट अ रैप अबाउट इट ऑल द टाइम. और लिहाजा तुम्हें बिल्कुल कोई परवाह नहीं है इस घर की. नो हेवन नोस आई डिडंट. नहीं, खुदा जानता है मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है. ब्रेक बट नाउ डैट वी हैव मेड इट सो होम लाइक फॉर यू, और हमने इसे तुम्हारे लिए इतना सजाया, इतना बनाया, फर्नीचर वगैरह का इंतज़ाम किया, सफाई सुथराई की, और पैसे दे के पे करके घर लिए. कहती ओह द रूम्स ऑल सीम्स टू स्मेल्स द लवेंडर एंड ड्राइड रोज लीव्स. ओह बड़ी तुम लोगों ने सफाई सुथराई की और ये फर्नीचर लगाए हैं. हैडा को गुस्सा आ रहा है कि पूरे घर में से मुझे लेवेंडर की खुशबू आती है. लेवेंडर के फूल होते हैं, जब कोई मर जाता है तो वो फूल चढ़ाए जाते हैं, और ड्राई रोज़ कहती है खुश्क फूलों की खुशबू आती है. But perhaps it's Aunt Julia that has brought all scent with her. ये कहती है आंट जूलिया के काम होंगे, वही फूल शुल लाई होगी. इनफैक्ट यहाँ पर वो प्राइम मिनिस्टर फॉक की मौत जो हुई है, तो फिर वो जाहिर है उसके लिए फूल शुल आते थे ना, तो उनकी खुशबू अभी भी फैली हुई है. और ये भी इस घर की एक प्रिडिक्शन थी कि यहाँ पर एक मौत पहले वाक़या हो चुकी थी, और आज का दिन ये बात कर रही है, तो कल के दिन में इसने भी मरना है. तो ये इस चीज़ की अलामत है कि यहाँ पर स्मेल ऑफ लेवेंडर, मौत की बू पहले ही फैल चुकी थी. एंड जूलिया ने पर इल्ज़ाम लगा रही है. ब्रेक हंसता है, लाफिंग. नो आई थिंक इट मस्ट बी अ लेजेसी फ्रॉम लेट मिसेस सेक्रेटरी फॉक. कहता है ये मिसेस सेक्रेटरी जो बेगम थी उसकी, फॉक की, प्राइम मिनिस्टर फॉक की जो बेगम थी, वो फूल शूल लेके आई है, उसने ये काम किया है. मिसेस टेस्मैन ने ऐसा कोई काम नहीं किया है. ये उसकी मौत के वक्त जो फूल रखे गए थे उनकी खुशबू है. हैडा यस देयर इज़ एन अडोर ऑफ मॉर्टैलिटी अबाउट इट. इसमें से मुझे वही मौत की बू आती है. इट रिमाइंड्स मी ऑफ अ
बैकवर्ड, और ये मुझे एक बैकवर्ड जैसा लगता है, ऐसा गुलदस्ते जैसा लगता है। एक्सक्यूज मी। अब कह रही है कि ये रिमेंस मी ऑफ अ बैकवर्ड, बैकवर्ड होता है गुलदस्ता, गुलदस्ते में ऐसे लगता है कि मैं उनमें मैंने खुशबू देख रही हूँ। द डे आफ्टर द बॉल, ये जो बॉल होते हैं इनके डांस होते हैं, डांस के एक दिन बाद क्लैप्स हर हैंड बिहाइंड, हर हेड अपने हाथों को अपने सर के पीछे बांध लेती है, लीन बैक्स इन हर चेयर एंड लुक्स एट हिम, झुकती है पीछे की तरफ और जज को देखती है। ओह माय डियर जज, यू कैन नॉट इमेजिन हाउ हॉरिबली आई शैल बोर माई सेल्फ हियर, तुम नहीं जानते मैं यहाँ पर कितनी बेजार हो चुकी हूँ। यहाँ पे जज से ये फ्लर्ट कर रही है। जज, why should not you to find some sort of vacations and love Mrs. Hadda? मिसेस हेडा, कोई नौकरी क्यों नहीं कर लेती, वेकेशंस कर लेती, कोई ऑप्शन क्यों नहीं ढूंढ लेती हो, कोई काम शाम क्यों नहीं कर लेती हो हेडा? वेकेशन, काम, दैट शुड अट्रैक्ट मी, वो मुझे तो अट्रैक्ट करेगा कि मैं कोई काम शाम कर लूँ। ब्रेक इफ पॉसिबल ऑफ कोर्स, लिहाजा बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, तुम्हें कोई काम कर लेना चाहिए हेडा। हेवन नोज व्हाट सॉर्ट ऑफ वेकेशन दैट कुड बी, मैं नहीं जानती, खुदा ही जानता है किस किस्म का काम मैं कर सकूँगी। आई ऑफन वंडर व्हेदर, मैं अक्सर औकात यही हैरान रहती हूँ, सोचती हूँ, क्योंकि विक्टोरियन एज जो थी ना उसमें ये था कि जो लेडी शादी कर चुकी है तो शादी के बाद वो कोई काम नहीं कर सकती है, सिर्फ घर संभालेगी, बच्चे संभालेगी, हस्बैंड को संभालेगी। और यही हेनरी गिब्सन ने यही मौजू उठाया कि हेडा बहुत इंटेलिजेंट थी, वो एक माइंड रखती थी कि वो कुछ ना कुछ करने का इरादा रखती थी, जब उसे कुछ करने को नहीं दिया गया तो उसने नेगेटिविटी अपना ली। यही सोच रही है कि मैं क्या करूं, ब्रेकिंग ऑफ बात जो है वो तोड़ती है, बट डैट वुड नेवर डू ईदर। अब बात को चेंज करती हुए कहती है ठीक है लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, ये मेरी कोई इस काम में मेरी मदद नहीं कर सकता। ब्रेक, हु कैन टेल, कौन कहता है, लेट मी हियर व्हाट इज इट, मुझे देखने दो, शायद मैं ही कोई नौकरी शोकरी का इंतज़ाम करता हूँ। whether I might not get Tasman to go into politics, I mean, कहती है मैंने क्या नौकरी करनी है, मेरा इरादा ये है कि टेस्टमैन को कायल कर लूँ कि टेस्टमैन सियासत में चला जाए, सियासत में चला जाएगा, अमीर लोगों से मिलेगा, बड़ी जो ऊंचे ऊंचे चोचले होंगे, थोड़ा इसको स्टेटस मिल जाएगा। ब्रेक लाफिंग हंसता है। टेस्टमैन, नो रियली नाउ पॉलिटिकल लाइफ इज नॉट द थिंग फॉर हिम, नॉट एट ऑल इन हिज लाइन। कहता नहीं, वो बिल्कुल भी पॉलिटिशियंस नहीं बन सकता, सियासतदान नहीं बन सकता, क्योंकि वो सियासत के लिए बना ही नहीं है और ये उसका लाइन नहीं है, ये उसका एरिया ही नहीं है, वो तो किताबें वगैरह लिखता है, वो और किस्म का बंदा है। आई डोंट नो, आई डेयर से नॉट, बट इफ़ आई कुड गेट हिम इनटू इट द सेम। कहती है हाँ मैं जानती हूँ तुम ठीक कह रहे हो, मैं फिर भी उसे कायल करना चाहूँगी कि वो सियासत में चला जाए। ब्रेक, वाई, व्हाट सेटिस्फैक्शन कुड यू फाइंड इन दैट, तुम्हें क्या मिलेगा उसे सियासत में भेजकर, इफ़ ही इज़ नॉट फिटेड फॉर that sort of things, लिहाजा वो इस किस्म की चीज़ों के लिए नहीं बना है। why should you want to drive him into it, क्यों तुम उसे वहाँ भेजना चाहती हो हेडा? because I am bored, मैं तंग आ गई हूँ। I tell you, मैं तुम्हें बताती हूँ। आफ्टर अ पोज रुक जाती है। so you think it quite out of the question that Tasman should ever get into the ministry, तुम समझते हो कि वो मिनिस्ट्री जा सकता है? मिनिस्ट्री वो कभी भी नहीं जा सकता, यानी अगर वो सियासत में जाएगा तो ठीक है, सियासत में तो जाके कुछ करेगा, तो क्या वो वहाँ जाके प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा? ये नहीं मैं सोच सकती। ये दूसरा सवाल है, बस उसको सियासत में आना चाहिए। ब्रेक, यू सी माय डियर मिसेस हैडा, मैं समझता हूँ, टू गेट इनटू द मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री में जाने के लिए कि प्राइम मिनिस्टर बन जाए, कोई सदर वजीर बन जाए, ही वुड हैव टू बी अ टॉलरेबली रिच मैन, उसको बहुत ज़्यादा अमीर बंदा होना चाहिए अगर वो इस सियासत में जाता है। पम्फलेट छिपवाने पड़ते हैं, अपनी पब्लिसिटी करवानी पड़ती है, तो फिर अमीर बंदे इस सियासत में जाते हैं, कोई गरीब बंदे का तो काम नहीं है ना। उसको अच्छा खासा रिच होना चाहिए, वेल ऑफ होना चाहिए। हाइडा राइजिंग इम्पेशेंटली, बेसब्री से खड़ी जाती है। यस देयर वी हैव इट, हाँ ऐसा ही है। इट इज़ दिस जेंटल पॉवर्टी इफ आई मैनेज टू ड्रॉप इनटू, तो ये गुर्बत, ये बदबख्त गुर्बत और ये बदबख्त गरीबी, और मुझे इसी में रहना है। क्रॉस इज़ द रूम, फिर कमरे पे क्रॉस करती है। ये हमने सिम्बोलिज्म में पढ़ा था कि अब इसको फिर बेचैनी लग गई है। डैट इज़ व्हाट मेक्स लाइफ सो पिटिबल, कितनी काबिल तरस ज़िंदगी हो गई है। सो अटरली रिडिकुलस,
ludicrous, कितनी मुहज़्ज़ा अंगेज़, मुज़ाहका अंगेज़ ज़िंदगी हो गई है, ridiculous ज़िंदगी हो गई है. For that's what is, और ये क्या है, यानी सेटिस्फाई नहीं है अपनी लाइफ से. ब्रेक नाउ शुड से द फॉल्ट ले elsewhere. हम कहता ठीक है, तुम ठीक कह रही हो, यही इसकी वजूहात हैं, तुम्हारी परेशानी की वजूहात शायद गुर्बत ही है. कहती हाँ वेयर देन, और इसके अलावा और क्या हो सकती है, गरीबी तो है ये, हर वक्त वो पैसे दिले का हिसाब करता है, खर्चे ज़्यादा हैं और इसकी ख्वाहिशें भी बड़ी बड़ी हैं. ब्रेक यू हैव नेवर गॉन थ्रू एनी रियली स्टिमुलेटिंग एक्सपीरियंस. कहता है तुम इस किस्म के एक्सपीरियंस से पहले नहीं गुजरी हो, तुमने पहले इस किस्म के एक्सपीरियंस नहीं देखे हैं. हैडा एनीथिंग सीरियस यू मीन, किसी संजीदा बात से तुम कहना चाह रही हो. येस यू मे कॉल इट सो, तुम ऐसा कह सकती हो. बट नाउ यू मे परहैप्स हैव वन इन स्टोर, लेकिन अब तुम्हें सोचना चाहिए कि तुमने इस किस्म की अगर पहले ज़िंदगी नहीं देखी है तो अब तुम्हें इस किस्म की ज़िंदगी का सामना करना है. हैडा टॉसिंग हर हेड, अपना सर हिलाती है. ओ यू आर थिंकिंग ऑफ द एनोनियस अबाउट दिस wretched प्रोफेसरशिप. कहती है क्या तुम मुझे ये बताना चाह रही हो कि मैं वो उसकी प्रोफेसरशिप के बारे में सोच रही हूँ, उसके बारे में फ़िक्रमंद हूँ. बट डैट मस्ट बी टेस्टमैन्स ऑन अफेयर, ये टेस्टमैन का कोई अपना ही मामला हो सकता है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं. आई एश्योर यू, मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ, आई शैल नॉट वेस्ट अ थॉट अबाउट इट, मैं इस पर कोई भी लम्हा ज़ाया नहीं करती हूँ. मुझे यानी उसकी ये फ़िक्र नहीं है कि वो टेस्टमैन की क्या बनेगी, उसके मिलेगी प्रोफेसरशिप के नहीं मिलेगी, कि वो लिए लव बव को मिल जाएगी, ये नहीं टेंशन. इससे बस दौलत की टेंशन है, शहरत की टेंशन है, पब्लिक की निगाह में अच्छा बनने की टेंशन है. ब्रेक नो नो आई डियर से नोट, मैंने ऐसा नहीं कहा, बट सपोज नाउ डैट व्हाट पीपल कॉल, लोग क्या कहते हैं, द एलिगेंट लैंग्वेज, बड़ी अच्छी अगर ज़ुबान इस्तेमाल करो, ऐसा रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हाट टू कम अपॉन यू, तुम्हारे पे भी जिम्मेदारी आने वाली है. स्माइलिंग अ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी मिसेस साडा, एक नई जिम्मेदारी. और इसको प्रेगनेंसी की बात पर गुस्सा आ जाता है, एंगरली गुस्से से बोलती है बी क्वाइट, खामोश रहो, नथिंग ऑफ दैट सॉर्ट विल एवर हैपन, इस किस्म का कुछ नहीं होने वाला. जज वेयरली, जज भी चूँकि ज़्यादा वो उसको तंग करना चाहता है तो खुशी से बोलता है वी विल स्पीक ऑफ दिस अगेन, योर हैंड्स आर द वेरी आउटसाइड. 1 साल के बाद कहता बात करेंगे इस मौजू पर. हैडा coldly, सख्ती से बोलती है, आई हैव नो टर्न ऑफ एनी थिंग ऑफ द सॉर्ट जज ब्रैग, नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर मी. ये भी इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि मैं इस किस्म का रुझान नहीं रखती और ना ही मैं इस किस्म की जिम्मेदारियों के लिए कोई हुनर रखती हूँ, मेरे पास ऐसा कोई टैलेंट नहीं है, क्योंकि मैंने इसकी परवरिश हुई है, अब्बा ने इसकी परवरिश की है, लेडीज़ वाली उसमें कोई बात नहीं है और लेडीज़ की बात को वो पसंद भी नहीं कर रही, इसीलिए कि नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर मी ये कोटेशन है. ब्रेक आर यू सो अनलाइक द जनरलिटी ऑफ वीमेन एज टू हैव नो टर्न फॉर ड्यूटीज विच, कहता तुम औरतों की उस नेचुरल टैलेंट की तरफ से इनकार करती हो, वो जो उनका झुकाव होता है उसका, उसके बरअक्स बात करना चाहती हूँ, अनलाइक बरअक्स बात करना चाहती हूँ. उनकी जो जिम्मेदारियाँ है बिसाइड्स द ग्लास डोर के पास से, ओ भी क्वाइट खामोश हो जा. आई टेल यू, मैं बताती हूँ, आई ऑफन थिंक देयर इज़ ओनली वन थिंग इन द वर्ल्ड आई हैव एनी टर्न फॉर, कहती मेरे पास ज़िंदगी में बस एक ही काम करने को है और मेरे पास एक ही हुनर है जिसके मैं कर सकती हूँ. ड्राविंग नियर टू हर, उसके करीब जाता है. एंड व्हाट इज़ दैट इफ़ आई मे आस्क, कौन सा हुनर है तुम्हारे पास. हैडा स्टैंड्स, खड़ी हो जाती है, लुकिंग आउट, बाहर को देखती है, बोरिंग माई सेल्फ टू डेप्थ. ये भी इंपॉर्टेंट लाइन्स है कि अपने आप को मौत की हद तक बेजार कर लूँ. नाउ यू नो इट, अब तुम्हें पता चल गया कौन सा मेरे पास टैलेंट है. टर्न्स लुक्स टुवर्ड्स द इनर डोर, अंदर वाले कमरे की तरफ देखती है, एंड लाफ्स और हंसती है. यस एज आई थॉट, जैसा मैंने सोचा था. हियर कम्स द प्रोफेसर, प्रोफेसर आ गया है. ब्रेक सॉफ्टली इन अ टोन ऑफ वार्निंग, उसको वार्निंग करते हुए कहता है खम 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 मिसेस हैडा, कि अब आगे बात नहीं करना क्योंकि टेस्टमैन आ रहा है. टेस्टमैन की एंट्री से हम इसको दोबारा स्टार्ट लेंगे ताकि हमारा मिक्सअप ना हो एक्ट और हमें जल्दी इसका लाइंस मिल जाए. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल. अल्लाह हाफिज़.